السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹرکی نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد علی اور بدلتے موسم کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صدر امام علی رحمان کی دعوت پر کل سے تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ تاجک صدر اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی۔ دورہ دو طرفہ تعاون، علاقائی، تجارتی اور عوامی روابط کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ کثیر الجہتی امور پر تعاون کے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ ملکی برآمدات میں اضافہ اولین ترجیح ہے۔ کاروبار دوست پالیسیز کی بدولت بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ صنعت، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ترقی سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملک کی معروف کاروباری شخصیات سے گفتگو۔ وفد کا معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنے اور سازگار کاروباری ماحول فراہم کرنے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد، پاک فوج اور سیکورٹی اداروں کی امن کے لیے قربانیاں بے مثال۔ وزیر اعظم کا ضلع خیبر کی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے پولیس اور ایف سی اہلکاروں کو خراج عقیدت، شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ معیشت بہتری کی جانب گامزن، حکومت اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ سولر پینلز، پینشنرز، کھاد، زرعی ادویات، طبی آلات اور فلاحی ہسپتالوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ کابینہ ارکان تنخواہ اور مراد نہیں لیتے۔ اراکین اسمبلی کو 500 ارب کا ترقیاتی فنڈ دینے کا دعویٰ غلط ہے۔ سیاسی جماعت بنانا حق ہے، حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا اجلاس۔ گزشتہ مالی سال میں ہدف سے زائد محصولات جمع کرنے پر ایف بی آر کے عملے کی تعریف۔ محصولات کی وصولی، ڈیجیٹائزیشن اور معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے لیے اقدامات کی بھرپور حمایت کی جائے گی۔ مالی سال کے آغاز پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ انڈیکس میں 379 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 78,824 پوائنٹس پر بند۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ مانسون بارشوں کے دوران نکاسیات کے انتظامات کا جائزہ۔ صوبے بھر میں پانی کی نکاسی کو بروقت یقینی بنایا جائے۔ سیف سٹی کیمروں اور ڈرون کے ذریعے بارش کے پانی کی صورتحال کی نگرانی کرنے کی ہدایت۔ اسرائیلی فوج کے غزہ اور رفح پر حملے، مزید 23 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج کی غزہ کے علاقے شجاعیہ کی جانب پیش قدمی۔ اسرائیلی حملوں میں ایک اور صحافی جان کی بازی ہار گیا۔ جیلوں میں فلسطینی قیدیوں پر وحشیانہ تشدد، دوران حراست متعدد فلسطینی شہید۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، جون میں 12 بے گناہ کشمیری شہید۔ پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کے نتیجے میں 26 افراد زخمی۔ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 570 افراد گرفتار۔ مودی کے دور میں مسلمانوں پر زمین تنگ، مذہبی آزادی خواب بن کر رہ گئی۔ مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور مساجد کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری۔ دہلی میں مساجد کو گرانے کے حالیہ واقعات کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے۔ مسلم مخالف اقدامات پر امریکہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا اظہار تشویش۔ ملک کے 41 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ بلوچستان کے 16، خیبر پختونخوا کے 11، سندھ کے 8، پنجاب کے
5 अजला और इस्लामाबाद के मखसूस यूनियन काउंसिल शामिल। मुहिम के दौरान 95 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुल्क में रवां हफ्ते मानसून बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, बहावलनगर, डीजी खान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। NDMA की इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ICC का T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ टूर्नामेंट का ऐलान। भारत के 6, अफगानिस्तान के 3, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी शामिल। मेगा इवेंट की रनर अप टीम जनूबी अफ्रीका का कोई प्लेयर शामिल नहीं। कोपा अमेरिका फुटबॉल कप, वेनेजुएला और एक्वाडोर की टीमें क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गईं। मेक्सिको का इवेंट में सफर तमाम। वेनेजुएला की जमीका को 3-0 से शिकस्त। एक्वाडोर और मेक्सिको के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। इवेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और जर्मनी में यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप, स्पेन और इंग्लैंड की क्वार्टर फाइनल में रसाई। स्पेन की जॉर्जिया के खिलाफ 4-1 से कामयाबी। इंग्लैंड की स्लोवाकिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसील की जानिब। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। ताजिक सदर और वज़ीर आज़म समेत आला शख्सियात से मुलाकातें होंगी। दौरे में मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा कर रहे हैं। दोशंबे में वज़ीर आज़म आला सतह सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ये दौरा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बाकायदा आला सतह तबादलों का हिस्सा है। फरीकैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। खास तौर पर इलाकाई तिजारत, अवाम से अवाम तक राबतों और तवानाई के साथ कसीर व जहती अमूर पर ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वस्त एशियाई रियासतों में ताजिकिस्तान पाकिस्तान के करीब तरीन वाक़े है। पाकिस्तान की बहरा अरब में वाक़े बंदरगाहें ताजिकिस्तान के लिए समंदरी तजारत का नजदीक तरीन रास्ता है। दोनों ममालिक के माबैन मजबूत रवाबित कायम है। वस्ती एशिया के मुसलमानों के माबैन इस्लामी तहजीब और सकाफत के गहरे तारीखी ताल्लुकात हैं। जोग्राफियाई कुर्बत के एतबार से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन मईशत, सनत, तवानाई, दिफा और दीगर शोबाजात में ताउन के लिए बहुत मौके मौजूद हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बजट इक़दामात के निफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए खुसूसी फैसले लिए गए हैं। मुल्की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मुल्क माशी तौर पर दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है। सनत, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में तरक्की से मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा और रोज़गार के नए मौके मैसर आएंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बरामद कुनंदगान को फौरी अदायगी यकीनी बनाई जाए। वफ़द ने वज़ीर आज़म को मुल्की मईशत को दुरुस्त सम्त में गामजन करने और कारोबार और सरमायाकारी के लिए मौजू माहौल फराहम करने पर खराज तहसीन पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि साजगार कारोबारी माहौल की फराहमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मारूफ कारोबारी शख्सियत और इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन जहांगीर तरीन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म को मुश्किल माशी हालात के बावजूद कारोबार और सरमायाकार दोस्त अवामी बजट पेश करने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए मुल्की मईशत को मुस्बत सम्त में गामजन करने पर भी मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी शरीक थे।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। जिला खैबर में दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर पुलिस और FC एहलकारों की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकार एजाज और FC एहलकार शहजाद को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। पाकिस्तानी कौम को अपने शोहदा और उनके अहल खाना पर फख्र है। वज़ीर आज़म ने शोहदा की बुलंदी दराजात और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। खैबर के इलाके जमरूद तख्ता बेग चौकी हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार एजाज खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स खैबर में अदा कर दी गई है। पुलिस अफसरान समेत इलाका मुअज़्ज़ज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर FC और पुलिस एहलकारों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने दहशत गर्द हमले की मजम्मत की और शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी से बेल्जियम के सुबकदोश और वज़ीर चार्ल्स डेरोगिन ने मुलाकात की है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारज कहते हैं कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म समेत काबीना के अरकान तनख्वाहें और मुराद नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। तफसील बता रहे हैं फ़हद जावेद। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारज ने कहा कि हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से कई शोबों में इस्लाहात की गई हैं। उन्होंने कहा कि बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कई शोबों को टैक्स से छूट दी गई है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को हुकूमत की बेहतरीन माशी इक़दामात को सराहना चाहिए था। ना सोलर पैनल पे टैक्स लगा है, ना टेक्स्ट बुक्स किताबों पे कोई टैक्स नहीं लगा, पेंशनर्स की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगा, फर्टिलाइजर पे, खाद पे और पेस्टिसाइड पे जो जरिए अद्वियात हैं उन पे टैक्स नहीं लगा, और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स पे कोई टैक्स नहीं लगने दिया वजीर आजम ने। मैं ये बिल्कुल क्लियर हूँ इस पे। मैंने अपनी ये क्योंकि ये विटनेस किया तो मैं चाहता था कि आपके सामने ये रखूं। हेल्थ इक्विपमेंट पे कोई टैक्स नहीं लगा, स्टंट्स वगैरह पे। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो लागू नहीं की गई, और उसको भी 60 रुपए की जो एक प्रेजेंट लेवल है उस पे मेंटेन किया गया, और एक कंटिंजेंसी मेजर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारज ने कहा कि गैर जरूरी और गैर मुनाफा बख्श इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर कमेटी कायम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि 500 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए दिए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज दिया है कि जो इंडस्ट्री है उसको 38 रुपए फी यूनिट जो बिजली की फराहमी है वो बहुत बड़ा रिलीफ है, तारीखी रिलीफ है जो दिया गया है। और ये इंडस्ट्रियल पैकेज जो है इससे एक्सपोर्टर्स को बहुत मदद मिलेगी। एक्सपोर्ट वाला टैक्स है वो सिर्फ मुनाफे के ऊपर है। कोई एक्सपोर्टर अगर मुनाफा नहीं कमाएगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो मुनाफे के ऊपर है कि मुनाफा कमाएंगे तो वो टैक्स लागू होगा। मिनिमम वेज में 15% इजाफा किया गया है। अताउल्लाह तारज ने कहा कि FBR के 13 ट्रिलियन रेवेन्यू के टारगेट को हासिल करने के लिए इकदामात उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के इकदामात से महंगाई कम होकर 11% की शरह पर आ गई है। फ़हद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इजलास हुआ। वज़ीर ममलिकत ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक ने भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वज़ीर ख़ज़ाना ने माली साल 2023-24 के लिए हदफ से ज़ायद 9,311 अरब रुपए महसूलात जमा करने पर FPR के अमले की तारीफ़ की। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर ममलिकत ने FPR की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि रेवेन्यू डिवीज़न हुकूमत के मालियाती मकासद के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। इजलास में इस अज़्म का यादा किया गया कि महसूलात की वसूली, डिजिटाइजेशन और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए FPR के इक़दामात की भरपूर हिमायत की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान IT इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद ज़ुहैब खान की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने एसोसिएशन के जारी इक़दामात और IT सेक्टर में तरक्की के फ़रोग़ में हुकूमती ताउन की ज़रूरत पर रोशनी डाली। वफाकी वज़ीर ने तंजीम की नुमाया खिदमात का एतराफ़ करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने पाकिस्तान में माशी तरक्की के लिए IT के शोबे की सलाहियत को तस्लीम करते हुए साज़गार माहौल फराहम करने के लिए हुकूमती अज़्म का इयादा किया।
वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल से निजी सरमायाकारी में ताउन की तलाश के लिए मारूफ आलमी मैनेजिंग कंसल्टेंट फर्म कैरनी के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने वफ़द को 5 फ्रेमवर्क के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि 5 E's का मकसद इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना और पाकिस्तान में मुस्तक़बिल की तरक्की की बुनियाद रखना है। उन्होंने तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की हासिल करने के लिए बरामदात को बढ़ाने, ज़राअत की पैदावार में इजाफे समेत सनती शोबे की तरक्की के रास्ते में हायल मसाइल को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल तब्दीली, तवानाई में खुद किफ़ालत और समाजी शोबे में मसावी तरक्की की अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने मुल्क के तज़वीराती अहदाफ के हुसूल के लिए ताउन और ठोस काविशों की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने नेशनल टैरिफ कमीशन का दौरा किया। इदारे के चेयरमैन नईम अनवर ने कमीशन के ऑपरेशंस और कामयाबियों के बारे में ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ने NTC की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, इंसानी वसाइल, कानूनी मामलात और बजट की उमूर से मुतालिक सिफारिशात तलब की। वफाकी वज़ीर ने NTC को ज़रूरी वसाइल और ख़ुद मुख्तारी से लैस करने की अहमियत पर जोर दिया ताकि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और तजारती पॉलिसीज़ के ज़रिए इसके किरदार को बेहतर बनाया जा सके। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इक़दाम की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के शोबे में नुमायां तरक्की होने लगी है। SIFC की सिफारिशात पर हुकूमत वज़ारत IT और टेलीकॉम सेक्टर और दीगर हुकूमती अवामिल में डिजिटाइजेशन में तेज़ी और बेहतरी लाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। 5G टेक्नोलॉजी की नीलामी का अमल भी इसी माह मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान स्टार्टअप फंड में वज़ारती मनसूबाबंदी और तरक्की ने 235 मिलियन रुपए की मंजूरी भी दे दी है, जबकि रोज़गार प्रोग्राम के लिए भी 229 मिलियन रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। माली साल के आगाज के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई है और मार्केट 379 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 78,824 पर बंद हुई। मजीद तफसील बता रही हैं नौरीन आसिफ। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का भी इजाफा देखा गया और मार्केट 79,000 की हद अबूर कर गई। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों की बदौलत मार्केट में तेजी देखने में आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गुज़श्ता माली साल में 94% इजाफे के बाद दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट रही। गुज़श्ता माली साल में एक्सपोर्ट्स में इजाफे के अलावा रुपए की कदर में इजाफा और ट्रेड खसारा कम होने के बाइस मार्केट ने 80,000 की हद भी अबूर कर ली थी। माहिरीन का कहना है कि माशी पॉलिसियों के तसलसल से आइंदा भी PSX में मजीद तेजी मतवक्के है। ऑल ओवर देखा जाए तो तकरीबन सभी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, फर्टिलाइजर ने, IT की बहुत डिमांड है, IT सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, केमिकल सेक्टर है, तो ये सारे 5 सेक्टर ने तो अच्छा परफॉर्म किया। तो मार्केट में अभी पोटेंशियल है, काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं जो अंडर वैल्यूड हैं और जो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह जो है टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर होगा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ जो थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस भी आएगा। जब लोकल बिजनेस डेवलप होगा तो फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आएगी। बाजार हिस्से में 425 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 183 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 186 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 56 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे किए। मानसून बारिशों के दौरान निकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। मजीद तफसील वसीम सज्जाद की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पंजाब में भी मानसून की बारिशों का आगाज हो चुका है। इस साल मानसून की बारिशें गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा होने के इम्कानात हैं। यही वजह है कि जहां इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे इस हवाले से भरपूर इंतजामात कर रहे हैं, वहीं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी खुद लम्हा बलम्हा इन इक़दामात का जायजा ले रही हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौरे भी इसी सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर आला ने हवाई अड्डे से शादमान, फिरोजपुर रोड, डेविस रोड और शिमला पहाड़ी के इलाकों का मुआयना किया। उन्होंने अंदरून और बैरून शहर की सड़कों और गली मोहल्लों का ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने जिला इंतजामिया को हदायत की कि वो फील्ड में रहें और बारिशों के पानी की बर वक्त निकासी को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला ने इंतजामिया से हर आधे घंटे बाद सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब कर ली। अच्छा, जो भी जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है उसको टेक्नोलॉजी के साथ, सेफ सिटी कैमरास के साथ, जैसे हमने ईद की सफाई का ऑपरेशन मॉनिटर किया था, इसी तरह सेफ सिटी कैमरास को कहीं फौरन हाईलाइट करें कहाँ कहीं अगर पानी खड़ा हो, लोगों को डिफिकल्टी आ रही है तो, और मुझे हर आधे घंटे बाद रिपोर्ट करें। राफिया, मैं कज़ाफी स्टेडियम में हूँ और ये बहुत ज्यादा पानी खड़ा हुआ है थ्रू द स्टेडियम, एंटायर स्टेडियम। तो यहाँ पर 2 पंप्स मैंने देखे हैं।
ड्रेन करने के लिए यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मशीनरी भेजें, जल्दी से वाटर को ड्रेन कराएं। उन्होंने वासा के अमले से मुलाकात की और मेहनत और लगन से काम करने पर उन्हें शाबाश दी। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ी रुकवाई और नकासी आब का खुद मुआयना किया और मुतल्लिका हुकाम को फौरी हदायत दी। सूबाई मुशीर सेहत मेजर जनरल रिटायर अजहर महमूद कयानी से मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सेहत के शोबे में इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर मुशीर सेहत अजहर कयानी ने हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए सिफारिशात पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सेहत का शोबा मेरे दिल के बहुत करीब है, इस शोबे में इनकलाब लाने का तहैया कर लिया है। वज़ीर ने कहा कि तमाम मराकज़ सेहत, PHQ और ट्रेजरी हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया है। दिल के अमराज, TB, कैंसर और हेपेटाइटिस की अद्वियात लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शोबे ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तारपुर ने कराची डिवीजन के पार्टी सदर सईद गनी ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। इस मौके पर सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत की गई। कानूनी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में लिस्ट जमा नहीं कराई। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी, कोई जमात लिस्ट जमा कराए बगैर मखसूस नशिस्तों का मुतालबा नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, मखसूस नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। जो नॉन मुस्लिम्स की रिजर्व सीट्स हैं उसके ऊपर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है कि रिजर्व सीट्स जो नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं वो उनको अलाउ नहीं करेंगे। अब ना तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट जमा कराई इलेक्शन से पहले, ना उनके किसी कैंडिडेट ने कोई नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, ना ही उसके साथ जो है अपनी पार्टी का जो इनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्टी का इनकी सियासी जमात का आइन है, उसमें कोई तब्दीली लेके आए। नाज़रीन, गजा और रफा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। सिहोनी फोर्सेस ने रिहायशी मकानों और पनाह गुज़ीनों के कैंपों को निशाना बनाया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी की कार्रवाइयों में मज़ीद 23 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 91 ज़ख्मी हो गए हैं। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 37,900 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 87,080 ज़ख्मी हो चुके हैं। काबिज़ फ़ौज की जानिब से गजा के इलाके शुजाया की जानिब पेशकदमी जारी है। इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है, इन्हें दिन रात अज़ियतें पहुँचाई जाती हैं। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने 8 माह की नज़रबंदी से रिहाई के बाद अल जज़ीरा को बताया कि फ़लस्तीनी नज़रबंदों को इसराइल की जेलों में हिरासत में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इसराइली फ़ौज के हमलों में एक और सहाफ़ी जान की बाजी हार गया। सरकारी मीडिया ऑफिस का कहना है कि शम्स न्यूज़ एजेंसी के सहाफ़ी मोहम्मद महमूद अबू शरिया सिहोनी कार्रवाइयों का निशाना बने। गजा पर इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अब तक 153 मीडिया वर्कर्स लुक़मा अजल बन चुके हैं। उधर मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों के दौरान मजीद 2 फ़लस्तीनियों को शहीद जबकि 16 को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने तिलकरम में एक लड़के और खातून को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास कल होगा जिसमें गजा की तामीर नौ पर बात की जाएगी। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक सलामती कौंसिल की खुसूसी इजलास में गजा में जारी इंसानी सूरत हाल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही खुसूसन खित्ते में तामीर नौ की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर और तामीर नौ के राब्ताकार सिगर्ड काग सलामती कौंसिल के अरकान को ब्रीफिंग देंगे। फ़लस्तीन ने गजा की पट्टी में गैर मुल्की फ़ौजियों की तैनाती और इस तरीके से कब्जे को दवाम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर किसी भी गैर मुल्की वजूद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फ़लस्तीन का इंतज़ाम कैसा होगा और उसे कौन चलाएगा, इस फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनी आवाम को है। हम गैर मुल्की फ़ौजों की तैनाती की तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं करते। फ़लस्तीन सदारती दफ्तर के तर्जुमान और वज़ीर इत्तलात नबील अबू रोज़ीना ने खबर रसां एजेंसी वफा के लिए जारी बयान में कहा है कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर किसी भी गैर मुल्की वजूद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। उन्होंने कहा कि हम दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में गैर मुल्की वजूद की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनी आवाम को दुनिया से काटने की चाल को मुस्तरद करते हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है, आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नाजरीन। लाजवाल रिश्ता पाकिस्तान और उसमें बसने वालों के माबैन रिश्ता माँ और औलाद के रिश्ते की मानिंद है। चंद अनासर रियासत पाकिस्तान और सूबों के दरमियान फूट डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अपने मुतालबात को लेकर इस माँ जैसी रियासत से नाराज हैं। इंसानी रिश्तों का शुमार अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में होता है। ये कीमती अतिया हमें इसलिए अता किया गया है ताकि रुए जमीन पर इंसान एक बेहतरीन माशरा कायम करे, एक ऐसा मिसाली इंसानी माशरा जिसकी बुनियाद अमन, मोहब्बत और सलामती पर हो। यूं तो हर रिश्ता ही अपनी जगह बहुत अहम और बेहद खूबसूरत है। कहानी कुछ यूं है कि एक माँ और उसके चंद बच्चे एक बहुत ही खूबसूरत घर में आबाद होते हैं। तमाम बच्चे अपनी माँ का एहतराम करते हैं, जबकि माँ भी उन पर जी जान से फरीफ्ता होती है। इस घर के इत्तेफाक व इत्तेहाद की मिसालें पूरे मोहल्ले में दी जाती हैं। एक दिन होता कुछ यूं है कि इन घर वालों में से एक बच्चा किसी बात पर अपनी माँ से जिद कर बैठता है। बेजा जिद तो सारे बच्चे करते हैं। माँ उन्हें कभी प्यार से और कभी डांट कर मना लेती है, मगर वो माँ के ना मानने पर तमाम घर वालों से कुछ उखड़ा रहता है। बुरे लोग जो पहले ही मौका की तलाश में होते हैं उसे खूब सराहते हैं। वो बच्चे को इस पर उकसाते हैं कि अगर वो अपनी माँ और भाइयों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करे तो इस सूरत में वो इसकी हर तरह से मुआवनत करेंगे। माना के चंद बच्चे अपने मुतालबात को लेकर इस माँ जैसी रियासत से नाराज हैं, लेकिन माँ तो हमेशा अपनी औलाद की आंखों में खुशी और मोहब्बत की चमक देखना चाहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की रियासत ने हमेशा अपने वसाइल से बढ़कर काम किया है। रूठे हुओं को हमेशा गले लगाया, ताहम बच्चा बच्चा ही होता है। उसको कुछ लोग ये कहकर भी वर्गलाते हैं कि तुम्हारी हिफाजत करने वाले तुम्हारे वसाइल हड़प कर जाएंगे। हम तुम्हारी माँ से भी ज्यादा तुम्हारे अपने हैं। तुम अपनी माँ के खिलाफ आवाज उठाओ, न सिर्फ आवाज उठाओ बल्कि हाथ भी उठाओ। ये वही माँ तो है जिसने अपनी आने वाली नस्लों की आबियारी के लिए शहीदों का खून बहाया है। वो दिन दूर नहीं जब अपनी माँ से ये नाराज बच्चा अपनी जिद और गलत फहमी की दीवार तोड़ डालेगा। भड़काने वाले हाथ मलते रह जाएंगे और घर एक बार फिर एक मिसाली घर बन जाएगा। एक ऐसा घर जिसकी इत्तेफाक व इत्तेहाद की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाएंगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि माँ और औलाद के रिश्ते के दरमियान जो भी आएगा वो बहुत पछताएगा।
पाक फौज ने बलाई वादी नीलम में पुल की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया है। लवात नाले पर बने पुल की खस्ता हाली से गुज़िश्ता दिनों 2 बच्चे फिसल कर नाले में गिर गए थे। पाक फौज ने इंतहाई कम वक्त में नाले पर पुल तामीर करके लोगों की मुश्किलात को आसान कर दिया है। नाले पर पुल तामीर होने से स्कूल जाने वाले बच्चों और मकामी आबादी को फायदा हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली में सिफारती चैनल के जरिए एक दूसरे की तहवील में कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी जेलों में कैदी 254 भारतीय या भारतीय समझे जाने वाले शहरियों और माहीगीरों की फहरिस्त हवाले की, जबकि भारत ने भारतीय जेलों में कैद 452 पाकिस्तानी या पाकिस्तानी समझे जाने वाले शहरी कैदियों और माहीगीरों की फहरिस्त दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से लापता 38 पाकिस्तानी दिफाई एहलकारों की फहरिस्त भी दी गई, जो मुमकिना तौर पर 1965 और 1971 की जंगों के बाद से भारत की तहवील में है, जबकि पाकिस्तान ने भारत में अपनी सज़ा पूरी करने वाले तमाम पाकिस्तानी कैदियों की फौरी रिहाई और वतन वापसी का भी मुतालबा किया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के दौरान जून में 12 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक 5 नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। गुज़िश्ता माह भारतीय फौजियों की तरफ से पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के नतीजे में 26 अफराद जख्मी हुए, जबकि इस दौरान मुहासिर और तलाशी की 196 कार्रवाइयों के दौरान 570 अफराद को काले कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया। मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज से 3 नए काले कवानीन नाफिज कर दिए हैं। इन तीनों कवानीन में इंडियन पीनल कोड तरमीमी एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तरमीमी एक्ट और इंडियन एविडेंस तरमीमी एक्ट शामिल हैं, जिनका मकसद हुर्रियत पसंद कश्मीरियों के गिरद घेरा मजीद तंग करना है। इन कवानीन से मकामी लोगों और बैन अल-अक़वामी मुबस्सरीन में तशवीश पैदा हुई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से इंसानी हकूक़ की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियाँ एक नया मामूल बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने यूनानी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया। मुजाहरे में हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी और सरदार अमजद यूसुफ भी शरीक थे। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत की पॉलिसीज़ और रियासती दहशत गर्दी की शदीद मसम्मत की। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वह मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय रियासती दहशत गर्दी को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। भारत में मुसलमानों की मजहबी आज़ादी ख्वाब बनकर रह गई। मुसलमान हमेशा से ही भारत में गैर महफूज रहे, मगर पिछली 1 दिहाई से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में संगीन हद तक इजाफा हुआ है। मोदी ने हमेशा मुसलमानों को अपनी इंतहा पसंदी का निशाना बनाया और इसी को बुनियाद बनाते हुए नाम निहाद सियासत को भी चमकाया है। मोदी पहले भी 2 बार मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को बेसाखी बनाते हुए इक़्तिदार पर काबिज रह चुका है। तीसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद मुसलमानों से मुंसलिक जायदादें, कारोबार और इबादत गाहें मोदी के निशाने पर हैं, जबकि मुसलमानों के खिलाफ रिवायती बुग़्ज़ का मुजाहरा करते हुए भारतीय इंतजामिया ने गैर कानूनी तजावुज़ात की आड़ में मुसलमानों के घरों, दुकानों और मसाजिद को मिसमार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हाल ही में भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में मसाजिद को गैर कानूनी तजावुज़ात का नाम देकर गिराने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली में मसाजिद को गिराने के हालिया वाक़यात से भारतीय मुसलमानों में गम, गुस्से और तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारतीय मुसलमानों की बड़ी तादाद ने मोदी सरकार के इस मुजरिमाना इक़दाम के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए एहतजाजी मुजाहरे किए। अमरीका समेत इंसानी हकूक़ की दीगर तंजीमों ने भारत में जारी मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक भारत में अक़लियतों को झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात पर हिरासा किया गया है। भारत में तब्दीली मजहब, मुखालिफ कवानीन, नफरत अंगेज तकारीर, घरों और अक़लियती मजहबी बरादरियों की इबादतगाहों को मिसमार करने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि भारत में मजहबी तशद्दुद मुसलसल जारी रहने पर अफसोस है। भारतीय मजहबी अक़लियतों के खिलाफ बयानबाजी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। मौसमियाती तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुबीना खुर्शीद आलम से अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के 3 रुकनी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। रुबीना खुर्शीद ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम से मुस्तफ़ीद होने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि सीमेंट, तेल, गैस, टेक्सटाइल और दीगर सनती शोबे में कार्बन क्रेडिट फ़रोख्त करके मुआशी फ़ायदा उठाया जा सकता है। अफ्रीका ने तजारती मंडियों में कार्बन क्रेडिट फ़रोख्त करने और माली फ़वाइद हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। वफ़द ने पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम शोबों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई।
چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام روبینہ خالد نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا غربت کے خاتمے میں اہم کردار ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے روبینہ خالد نے کہا کہ مستحقین سے کسی قسم کا ناروا سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ BISP کے تحت مستحقین کو عزت نفس مجروح کیے بغیر ادائیگی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے لیے BISP کے پورے پیسے ملنے چاہیے، لوگوں کے روزگار کے لیے بھی پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نئے مالی سال کے پہلے روز ہی ٹریڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 1 جولائی کو 240 ٹینڈرز جاری ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہنا ہے کہ نئے مالی سال کے آغاز سے ہی ٹینڈرز جاری کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یہ اقدام گڈ گورننس کی سمت ایک مؤثر قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے مالی سال میں تمام پروجیکٹس کی مسلسل مانیٹرنگ اور تکمیل ہمارا عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی صدارت میں لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹائزیشن سے متعلق جائزہ اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے DC کوئٹہ کو ہدایت کی کہ ستمبر کے اوائل میں کوئٹہ شہر کے لینڈ ریکارڈ کو مکمل ڈیجیٹائز کر دیا جائے۔ اجلاس میں لینڈ ریکارڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے بریفنگ بھی دی گئی۔ کوئٹہ، جعفر آباد، پشین اور گوادر میں ابتدائی طور پر ریونیو ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھرتی کے عمل میں میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانے کے احکامات دیے۔ سندھ حکومت کی جانب سے خصوصی بچوں کو سماجی دھارے میں شامل کرنے کے لیے 80 ایکڑ اراضی پر انکلیو سٹی قائم کیا جا رہا ہے۔ سٹی میں 15 ایکڑ اراضی پر خصوصی افراد کا سکول، بحالی مرکز، سی آرٹس اور فنی تربیت کا شامل ہوں گے۔ مزید 15 ایکڑ اراضی پر جنرل اسپتال، نیورو سائیکیٹری، سائیکالوجی کلینکل انسٹیٹیوٹ، جبکہ خصوصی افراد کے لیے 40 ایکڑ اراضی پر خوبصورت پارک بنائے جائیں گے۔ کراچی میں خصوصی افراد کی بحالی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت تمام طبقات کی بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے انکلیو سٹی قائم کرنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ڈسوری کی جانب سے مستحق اور غریب افراد کو امدادی چیک دیے گئے۔ گورنر سندھ کی ہدایت پر اب تک کروڑوں روپے مالیت کے چیکس، موٹر سائیکل، لیپ ٹاپس مستحقین کو دیے جا چکے ہیں۔ درخواستیں دینے والوں میں مستحق طلبہ کے علاوہ اسٹریٹ کرائمز متاثرین بھی شامل ہے۔ مستحق افراد نے گورنر سندھ کے ان اقدامات پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر فل ریمارس کی سربراہی میں وفد نے لاہور میں قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں نیو یارک اور پنجاب کے درمیان سسٹر اسٹیٹ بنانے سمیت پاک امریکہ تعلقات، پارلیمانی امور سمیت تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور نیو یارک قانون ساز اسمبلی ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی مسٹر فل ریمس نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات کے چیئرمین پلین بلوچ نے PTV کوئٹہ سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے PTV بولان سے بلوچستان میں بولی جانے والی مقامی زبانوں پشتو، بلوچی، براہوی اور ہزارگی میں نشریات کو بے حد سراہا۔ مختلف شعبوں کے سربراہوں سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان ملک کی اہم ترین اکائی ہے۔ PTV بولان کے پروگراموں کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی تفویض کردہ قانون سازی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ سینیٹر فوزیہ ارشد نے سینیٹر نسیمہ احسان کا نام بطور چیئرپرسن کمیٹی تجویز کیا، جبکہ سینیٹر بشرا انجم بٹ نے ان کے نام کی تائید کی۔ نو منتخب چیئرپرسن کمیٹی نسیمہ احسان نے اعتماد کرنے پر ارکان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کمیٹی اراکین کے ساتھ مل کر قانون سازی کے عمل کو احسن طریقے سے سر انجام دیا جائے گا۔ مشہور ترک ڈرامے ارطغرل غازی کے کردار عبد الرحمن غازی سے شہرت پانے والے اداکار جلال آل نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور ترکی مشکل وقت کے دوست ہیں۔ ترک اداکار جلال آل نے کہا کہ ارطغرل ڈرامے کو دنیا بھر میں پاکستان میں جو پذیرائی ملی وہ ناقابل فراموش ہے۔ جب بھی پاکستان آیا خود کو ہمیشہ اپنے گھر میں محسوس کیا، جلد ایک بار پھر دورہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی تو غور کروں گا۔ اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے برادر ملک ترکی میں مختلف شعبوں میں بہت سے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی ڈرامے کی کامیابی پر بہت خوشی اور فخر ہے۔ مجھے امید ہے کہ دیگر پروجیکٹس میں ہمیں اپنے پاکستانی اداکار بھائیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ پاکستانی پروڈیوسر بہترین پروڈکشن بنا رہے ہیں، معیاری اور قابل دید کام کر رہے ہیں۔
नाज़रीन, मुल्क के 41 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। बलूचिस्तान के 16, खैबर पख्तूनख्वा के 11, सिंध के 8, पंजाब के 5 अजला और इस्लामाबाद की मखसूस यूनियन कौंसिल शामिल हैं। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 95 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। FWO की जानिब से ज़िला आमिर के इलाके तांगीर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 1100 से ज़्यादा मरीजों का मुआयना किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम किए गए। FWO तांगीर के लोर गांव में 21 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी तामीर कर रहा है, जबकि तालीम के शोबों में भी नुमाया किरदार अदा कर रहा है। इलाके के अवाम ने FWO की जानिब से खैर सगाली के इकदाम और कोशिशों को सराहा है। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने टेक्सास वर्ल्ड एविएशन पेरिस के उन्वान से मुनक्किदा नुमाइश में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान पवेलियन में 12 पाकिस्तानी नुमाइश कुनंदगान की टेक्सटाइल मसनूआत रखी गई हैं। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और एम्बेसी के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्शन ने नुमाइश में पाकिस्तानी मसनूआत को मुतारिफ करवाने का मकसद मुल्की मसनूआत को आलमी मंडियों तक पहुँचाना और बरामदात में इजाफे के साथ मुल्की सनत को फ़रोग़ देना है। नुमाइश 3 जुलाई तक जारी रहेगी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत से ज़मीन के नामियाती मादे मुतासिर हो रहे हैं और फसलों की आबी ज़रूरियात भी बढ़ गई हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं फरहान मिर्ज़ा अपनी इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में मई, जून और अब जुलाई के महीने में शदीद गर्मी, हब्स और लू की शिद्दत बरकरार है। मौसमियाती तब्दीली और दर्जा हरारत में इजाफे से जहाँ मामलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं, वहीं फसलात में ज़मीन के नामियाती मादे मुतासिर हुए हैं, जिससे मौसमी कपास की फूल गुड्डी और नशोनुमा में कमी देखने में आ रही है, जबकि अगीती काश्त में फ्रूटिंग के अमल का सिलसिला बेहतर है। खाद पानी देते रहेंगे तो ये जो जून जुलाई का महीना होता है तो इसमें ज़्यादा हमारी फसल मुतासर होती है। प्री मानसून और मानसून का ये सीज़न भी है। इस दौरान हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फसल को जो है लाइट इरिगेशन दें। वाइट फ्लाई की जो पॉपुलेशन होती है, कीड़ों की मतलब बहतात हो जाती है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर चौथे दिन जो है हमें पेस्ट कोटिंग भी करनी चाहिए। रवां सीजन में पंजाब भर में 35 लाख एकड़ रकबे पर कपास की काश्त का हदफ मुकम्मल किया गया है। मौजूदा सूरत हाल में महकमा ज़राअत की जानिब से कम 26 मन फी एकड़ कपास की औसत पैदावार के हसूल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। शदीद गर्मी और हब्स के इस मौसम में काश्तकार हजरात सबसे पहले अपना ख्याल करें और अपनी फसलों को वक्त पर पानी दें। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। खबर आबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मलिक उमर की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मगरबी हवाओं का एक सिलसिला कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मौजूद है, जबकि बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून की मरतूब हवाएं भी मुल्क के जनूब मशरकी हिस्सों में दाखिल हो रही हैं। इस तब्दीली से रवां हफ्ते कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों, बालाई पंजाब, खित्ते पोठोहार, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि मुल्क के दूसरे इलाकों में मौसम गर्म मरतूब रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के इख्तिताम तक बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गिलियात, बालाई खैबर पख्तूनख्वा समेत पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों के खतरे से आगाह किया है, जबकि डीआई खान में रोदकोहियों का भी इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से इस साल मानसून के सीजन में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया है। असका मकसूद की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए।
सुबह सवेरे होने वाली प्री मानसून सिलसिले की मूसलाधार बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। गर्मी से निढाल शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारिश के बायस शहर की मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा हुआ, मगर वासा हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम जगहों से पानी की निकासी को यकीनी बनाया और कमिश्नर लाहौर ने भी निकासी आब इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। से अगले 3-4-5 दिनों में पूरे इलाके में पंजाब के हैं, इसमें गुजरांवाला, पिंडी, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन में बड़ी अच्छी बारिशें का इम्कान है और उसमें यह है कि मजीद मौसम में जो हबस है और गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी आ जाए। महकमा मौसमियात का कहना है कि 5 जुलाई से सूबे में मूसलाधार बारिशों का स्पेल दाखिल होने की तवक्को है और रवां बरस मॉनसून की बारिशें 35% ज्यादा होने के इम्कानात हैं। ज्यादा बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर तमाम मुतल्लिका इदारों को पहले ही हाई अलर्ट दे रखा है। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बखर की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में 46, दादू में 45, मुल्तान और सरगोदा में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37, कराची में 38, पेशावर 41, जबकि कोयटा में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर मौसम की सूरत हाल से आगाही के लिए। नाज़रीन, इसी हवाले से मजीद बात करें तो मौसम गर्मा के दौरान गर्मी की शिद्दत से ज़्यादा गर्मी महसूस होने पर एक इस्तिलाह फील लाइक इस्तेमाल की जाती है, जो कि दरअसल दर्जा हरारत से ज़्यादा महसूस किए जाने वाले टेम्परेचर को जाहिर करती है। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचाव मुमकिन है, तफसील बताएंगी हुमा सदफ। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में दुनिया की दर्जा हरारत में इजाफा तो हो रहा है, मगर हैरान कुन अमर ये है कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल और तर्ज जिंदगी भी गर्मी की शिद्दत में उतार चढ़ाव का बाइस बनता है। यही वजह है कि दर्जा हरारत का असर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होता है। शहरों में इमारतों और सड़कों की तपिश, ट्रैफिक का धुआं, जहरीली गैसों का अखराज और दरख्तों की कमी के बाइस दर्जा हरारत देही इलाकों के मुकाबले में 2 या 3 डिग्री ज्यादा होता है। इस रुझान को अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। बैरन एरिया जो है डायरेक्ट जो है सनलाइट ज़मीन पर पड़ती है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो गर्म हो जाती है, तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता वो ना सिर्फ दिन के वक्त ज़्यादा होते हैं, तो जब रात होती है तो वो जो रेज़ जो ज़मीन ने अब्जॉर्ब की हुई होती है वो वापस रीमिट करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा नीचे नहीं आता। माहिरीन का कहना है कि छतों पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि उनसे पैदा होने वाली नमी से छत ठंडी रहे, जबकि सड़कों के किनारों पर मुनासिब शजरकारी की जाए। पाकिस्तान में 2015 के बाद 2024 में सबसे ज़्यादा गर्म साल 2024 रहा है। अगले जो आने वाले साल है सिंध और बलूचिस्तान की ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा जिंदगी। 19वीं सदी से मादनी ईंधन को जलाने और जंगलात काटने से माहौल में गैसों का तवाजुन तब्दील हुआ, जिससे आलमी दर्जा हरारत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल के पेश नजर इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर जिम्मेदाराना किरदार ही दर्जा हरारत को मजीद बढ़ने से रोक सकता है। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ईद उल अज़हा की मुनासबत से फ्रैंकलिन पार्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से कवाली नाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में नामवर कवालों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। कवाली की धुनों ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। ईद उल अज़हा की इस तकरीब का मकसद मुसलमान कम्युनिटी की एक खूबसूरत रिवायत को जिंदा रखना है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की वादियाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। आइए आपको सैर कराते हैं जिला नगर के खूबसूरत गांव मिनापिन की, जो गिलगित से खुंजराब जाते तकरीबन 80 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। सैर करवा रहे हैं शेर मोहम्मद। मिनापिन वादी नगर के एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है जो राकापोशी गुलमित से 12 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। शाहराह कराक्रम पर गिलगित से हुंजा चाहते हुए पिसन नगर से
दाएं जानिब मुड़ना पड़ता है। वादी मिनापिन से रकापोशी बेस के लिए वाहिद रास्ता निकलता है। यहाँ सियाहों के लिए 5 से ज्यादा होटल तामीर किए गए हैं। वहाँ फरमाइश पर हर किस्म के पकवान तैयार किए जाते हैं। मिनापिन में कदीम जमाने का देगचा, जिसे मुकामी जबान में बलोच कहा जाता है, मटन तैयार की जाती है जो बहुत मशहूर है। यहाँ पे स्पेशली बर्तन और कढ़ाई इस तरह के फैसिलिटी भी मौजूद है। सरसब्ज और शादाब बागात और शोर मचाते हुए नदी नाले इस वादी की हुस्न को बढ़ाने और सियाहों को यहाँ लाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमें वो बहुत अच्छी लगी थी जगह। हम फिर स्पेशली यहाँ पे ये वाली ईद मनाने और समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ आते हैं। जून के दरमियान से चेरी यहाँ पक जाती है और होटल में मुफ्त चेरी भी दी जाती है। राकापोशी का बेस कैंप जो है वाहिद मिनापिन से रहता है, जिधर वो फार्मर मिनापिन आते हैं। तो यहाँ पे ये नेचुरल स्टेडियम इधर से नज़दीक होता है। तो इधर पहले एक होटल होता था, अभी इसी वजह से तकरीबन 4-5 होटल बने हैं, तो इसीलिए ये बड़ा मशहूर है। शेर मोहम्मद, PTV न्यूज़, गिलगित। खेलों की खबरों का आगाज करें और आपको बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम में भारत के 6 खिलाड़ी शामिल हैं, अफगानिस्तान के 3, जबकि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर शामिल है। टीम में मेगा इवेंट की रनर अप टीम जनूबी अफ्रीका का कोई प्लेयर शामिल नहीं है। वर्ल्ड चैंपियन भारत के रोहित शर्मा को कप्तान मुकर्रर किया गया है। दीगर खिलाड़ियों में भारत के सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गरबाज, राशिद खान और फजल हक फारूकी के अलावा वेस्ट इंडीज के निकोलस पुरान और ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टॉइनस भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। जनूबी अफ्रीका के एनरिक नोकिया को 12वें खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है। स्पेन और इंग्लैंड की टीमें यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कोलोन में खेले गए राउंड ऑफ 16 के मैच में स्पेनिश टीम ने जॉर्जिया के खिलाफ 1 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेटी। फातह टीम की जानिब से रॉड्री, फैबियान रोइस, निको विलियम्स और डैनी ओल्मो ने 1 गोल स्कोर किया। जॉर्जिया के लिए वाहिद गोल स्पेन के रॉबन ली नॉर्मन ने ओन गोल की सूरत में किया। क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला मेजबान जर्मनी से होगा। ग्लेजन कैरिशन में खेले गए एक और प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने स्लोवाकिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर लास्ट 8 में जगह बनाई। खेल के 25वें मिनट में स्लोवाकिया के एवन शिरानज ने गोल करके अपनी टीम को बढ़ती दिलाई। दूसरे हाफ के इख्तितामी लम्हात में इंग्लैंड के जूड बिलिंगम ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। स्टॉपेज टाइम में हैरी केन ने फैसलाकुन गोल करके इंग्लैंड को कामयाबी दिलाई। इवेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वेनेजुएला और एक्वाडोर ने कोपा अमेरिका फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मेक्सिको का इवेंट में सफर तमाम हो गया है। इवेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। टेक्सास में खेले गए तीसरे राउंड के मैच में वेनेजुएला ने जमैका को 3 गोल से शिकस्त देकर ग्रुप बी में टॉप पोजीशन हासिल की। खेल का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। फातह टीम की जानिब से एडवर्ड डेब्लो, सोलोमन, रविंदन और एरिक रमेज ने 1 गोल किया। क्वार्टर फाइनल में वेनेजुएला का मुकाबला कनाडा से होगा। एरिजोना में एक्वाडोर और मेक्सिको के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। एक्वाडोर की टीम ने ग्रुप बी में 4 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। लास्ट 8 में एक्वाडोर की टीम डिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से टकराएगी। एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौमी साइकिलिस्ट अली इलियास ने अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। तफसील अरीबा जिशान से। काजाकिस्तान में होने वाली इंटरनेशनल एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी साइकिलिस्ट अली इलियास ने 2 गोल्ड मेडल हासिल करके तारीख रकम कर दी। ये जीत साइकिलिंग की दुनिया में पाकिस्तान की मौजूदगी के लिए एक अहम संगे मील है, जो मुल्क के बढ़ते हुए टैलेंट और खेल से वाबस्तगी को जाहिर करती है। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के चेयरमैन अजहर अली शाह का कहना था कि हमें इस तारीखी कामयाबी पर अली इलियास और पूरी टीम पर फख्र है। इसने वो काम किया है जो गुज़श्ता 70 साल में
पहले किसी ने नहीं किया था साइकिलिंग और स्पेशली स्पोर्ट्स और साइकिलिंग में, कि एक ही टाइम पे जाके 2 गोल्ड मेडल हासिल करना। अली इलियास का कहना था कि मुझे मौका मिलता रहा तो मुल्क के लिए मजीद एज़ाज़ात भी हासिल कर सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब का बेहद मशकूर हूँ जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, और उससे मैं समझता हूँ कि इसके पाकिस्तान के खेलों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इंटरनेशनल एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में एशिया भर के बेहतरीन साइकिल सवारों से मुकाबला करते हुए अली इलियास ने गैर मामूली महारत का मुजाहरा किया। साइकिलिंग के मैदान में बैनुल अक़वामी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अली इलियास पर पूरी कौम को फख्र है। अरीबा ज़िशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।